بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خواب نگری۔ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ناول مصحف کی تیسری قسط، مصحف از نمرہ احمد نیازی، قسط نمبر 3۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل: یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں: بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتہ، ذرا گن کر دیکھیں۔ یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی بہنوں سے کہا بھی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی۔ یا میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامز ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظر سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمد اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں، کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہیے۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائی، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں اپنی جگہ شرمندہ تھیں۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب علم ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو اڑتے ہوئے سوئی تھی۔ صبح کالج بس کے لیے وہ سٹاپ پہ رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کی اماج گاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ ایک عرصے پہلے اسے الاٹ کر دیا گیا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھا، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ
किताब देखकर कल वाला वाकया याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए ख़ुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो ज़रा सा मुस्कुराई। मोटी आंखों की चमक और बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है? उसने गौर से इसकी चमक को देखा। बहुत ज़्यादा। आप इसे काफ़ी जानती थी? मेरा मतलब है, ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब? ये आपको आपका माजी, हाल, मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है। गुज़रे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है, और मुझे ऐसे मौके पर क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल ज़ोर से धड़का। वो सियाह फाम लड़की इससे बहुत अजीब बात बता रही थी। जाने कैसे पुरस्कार भेद भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फ़ायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। तो आपके तो मज़े होंगे। आप इसको पढ़कर सब जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल है। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल? अमलियात? वो चौंकी। अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सिफली इल्म की माहिर बैठी है। इसे थोड़ा एतराज़ बरतना था। हाँ, सियाह फाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के ज़रिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। हर शय इसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का ख़ास अमल सीखो तो तुम्हें अगर तुम भी इस किताब का ख़ास अमल सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल, मुस्तकबिल नज़र आने लगेगा। और इसके बाद वो सहज़दा सी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी इससे बांध कर ही गुजरनी होगी। और अगर इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज़, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबराकर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। इसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन ज़रूर आओगी मेरे पास। सियाह फाम लड़की मुस्कुराई। तुम एक दिन ज़रूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो। तुम्हारा दिल जख्मी है और हाथ खाली हैं। और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा, मैं तुम्हें ये किताब दे दूँगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। शाम को उसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सौफले बनाया, और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर थी कि आरज़ू नीचे से आती दिखाई दी। और ये किस लिए है? वो माथे पे बल डाले लम्हा भर को रुकी। फादी के लिए है? जी, उन्होंने कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद न आया तो बना ही दिया। उसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए मुंतज़िर थी कि आरज़ू नीचे उतरे तो वो ऊपर जाए। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरज़ू जीने से उतरकर इसके सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कौरमा बना लिया? मम्मी ने कहा भी था। तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊं, और ये ट्रे फवाद भाई को देकर आप अपने नंबर बना लें। तो लें, पकड़ें। इसने ज़ोर से ट्रे से थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खट खट सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज़।
वो बड़बड़ाई, मगर महमल जानती थी कि उसकी आवाज़ फवाद सुन चुका होगा और अब आरज़ू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और यही हुआ। रात खाने के बाद जब मुसर्रत ने चॉकलेट सौफले लाकर रखा तो फवाद ने सबसे पहले कह डाला, ये तुमने बनाया है महमल? जी, सादगी से बोली। आरज़ू ने नागवारी से पहलू बदला, बहुत टेस्टी है। तुम रोज़ ही मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मेरे। दिल करेगा तो बना दिया करूँगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हजूरियाँ नहीं होती। अम्मा एक फुल्का मुझे भी दे। वो मसरूफ़ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी जैसे उसे फवाद के तासुरात की परवाह ही नहीं थी। वो तायद वो तायदन सर हिलाकर सौफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक कर उसके मोमी चेहरे पे जा टिकती थी। सौफले को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुनवई बादल इकट्ठा होने लगे। वो अभी तक स्पंज से प्लेट में मारते हुए इस स्याह फाम लड़की के मुतालिक सोच रही थी जिससे वो जिससे वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से एतज़ाज़ बरत रही थी। एन एन बस के टाइम पर स्टॉप पर आ जाती और बेंच पर बैठने की बजाय ज़रा फासले पर खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्तन इस लड़की को देखती, ना इसके करीब जाती। मालूम नहीं क्यों इसे इस लड़की से और इस किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल ज़रा गरजे तो वो चौंकी। नीलगु सुनहरी शाम पे ज़रा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल, जाओ मुसर्रत से कहो, बल्कि ताई महताब जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से खुश गपशप में मसरूफ थी, इसे आते देखकर हुक्म सादर करते करते रुकी। इसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हा भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकौड़े बनाकर लाओ, साथ में धनिए की चटनी भी हो और मांस के लिए आलू की चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। उसने कदरे बेबसी से इनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश बाद में करूँगी, वो मुनमुनाई। हाँ हाँ, तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ। जाओ, शाबाश शाबाश, जल्दी करो। वो निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का ताई। मैं कल ही आपको लेकर चलती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे पेंट्स आए हुए हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी फेयर है, आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छीलकर काटते बेसन घोल कर रखा तो तब ताई महताब की आवाज़ आई, मिक्स पकौड़े बनाना। फवाद को प्याज वाले पकौड़े बहुत पसंद है। भाड़ में गई इसकी पसंद। उसने जोर से छुरी स्लेब पर पटकी। आलू कतलियों में काटे और अब फिर इनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटने पड़ेंगे। शिद्दत बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब ही फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के खुले दरवाजे पे ठठक कर रुका। खुली जीन्स पर लंबा कुर्ता और गले में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पोनी टेल बांधे, वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पर चमक रहे थे।
महमल वो बेचैन सा करीब आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खाने से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं, सब हुक्म सादर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पुष्ट से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकौड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा? वो पता नहीं क्यों हंस दिया। वो रुक कर इसे देखने लगी। आप हंसे क्यों? कुछ नहीं, खैर पकौड़े बनाओ और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डाक भरता बाहर चला गया। इसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस जाने किस भोलेपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो उसकी मुट्ठी में आ गया तो। उसने नफी में सर हिलाकर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज, मतलबी। और जब तक पकौड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकौड़े चट कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग धरे बैठा फर्जी कॉलर झाड़ कर कह रहा था। हसन फिजा चची का बेटा और निदा साम्या का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबह था। बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में वो काफ़ी मुख्तलिफ था। उसने फिजा की मीठी ज़ुबान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं किया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था। नरम गो, साफ दिल और हैंडसम। अभी भी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीनें फोल्ड किए बैठा था। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पर ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? साम्या बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बाइस बाहर आ गई। मैं भी चलूं? सब ने रुक कर इसे देखा। कंधे पर पर्स लटकाए, बालों को स्टाइल से पेंट किए, बैंड बैंड में जकड़े आरजू ने जो बाहर से आ रही थी कदर नागवारी से इसे देखा। इनको इनको भी शौक सताने लगे हैं। और फिर सब ही साथ साथ बहलने लगे। तुम्हारी जगह नहीं है, हम पापा की हाईएस लेकर जा रहे हैं, सबकी सीट्स पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिद्धार्थ तमस्खाना अंदाज में हंसी। मेहताब ताई की फोटोकॉपी। बेटा, आपके तो एग्जाम्स हो रहे थे। फिजा चच्ची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ, शाबाश। सारे कोर्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करो। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा ना। तुमने बाहर जाकर क्या करना? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को रुककर कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा। हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था बोल उठा, कोई महमल से भी पूछे वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम इससे पूछते रहे। ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हा भर को चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे को झाड़े जाने को वाजिया बुरा माना। चलो तुम अंदर जाओ, बस इतना कह सकी। मेहताब ताई से मुकाबला इनके बस की बात न थी। वो पैर पटक कर भागकर किचन में आई और सिंक में सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइवे पर हाईएस बाहर निकलती नजर आई। इसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़ेह बन जाती थी।
بے اختیار اس کا دل چاہا کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر بھی سکتی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔